हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई होप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्होंने मेरा पहला वाला वीडियो ऑन प्रोकैरियोट सेल देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम यूकैरियोट से शुरू करेंगे। ओके, सो व्हाट इज ए यूकैरियोट सेल? यूकैरियोट सेल वो है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। यूकैरियोट सेल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट सेल्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई एंड एनिमल सेल्स। यानी खाली बैक्टीरिया को अगर हम छोड़ दें या हम अगर किंगडम मोनेरा और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दें, बाकी जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल हैं, राइट? नाउ यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट यू कैन से presence of membrane bound organelles. Now because membrane bound organelles है, इसीलिए we can say compartmentalization of the cytoplasm. यानी साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस एक स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे इन organelles आके it also divides the cytoplasm. So that results in compartmentalization of cytoplasm. Clear? Third is presence of DNA या the genetic material inside nucleus. यानी the genetic material is not naked anymore. और ये यूकैरियोटिक सेल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? प्रोटिस्ट्स, plant cells, fungi and animal cells. Now students, five kingdom classification किस किस को याद है? So other than Monera, the rest of the five kingdom have eukaryotic cells. अब यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल सेल्स पे कुछ कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। What are the differences? Let us see. Now, प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस को जानने के लिए I have kept both the images side by side. And these are the diagrams that are given in your book और मैं वहीं से ली हूँ. So this is the plant cell and this is the animal cell. First difference, presence of cell wall in plant cell, right? So cell wall present, cell wall absent. Now यहाँ पे students write कि cell wall other than plant cell it is also present in fungi and protists. Clear? खाली animal cell में ही cell wall नहीं होता. Now if we come inside, सबसे पहले what grabs our attention is this. So in plant cell we have a large central vacuole. यहाँ पे एनिमल सेल पे either it is absent or even if अगर present हो भी so it is very insignificant. Clear? Third is the presence of plastids. Plastids are present in plant cells. Plastids are also present in the photosynthetic protists. They are absent in fungal cell and animal cell. This and fungi. और प्रोटिस्ट जो है वो बीच का है, कुछ में है कुछ में नहीं. क्लियर?
and then animal cells have centrioles. ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, प्लांट सेल्स पे ये नहीं होता. Clear? So that was an overview of eukaryotic cell and the differences between plant and animal cells. Now let us begin by studying the different organelles of eukaryotic cell. So students, that was all about the overview and differences between plant and animal cell of a plant and animal eukaryotic cell. अब हम eukaryotic cell को in details पढ़ते हैं. So let's begin from outside to inside. पहले हम पढ़ेंगे cell wall. Okay? Cell wall क्या है? Non-living, rigid structure, rigid layer seen in plant cells, fungi and protists. क्या होता है? What is cell wall made up of? Now cell wall is primarily made up of cellulose. ओके. इन प्लांट सेल अगर हम देखें, एक तरफ प्लांट सेल ले लेते हैं, दूसरी तरफ एल्गी ले लेते हैं. एल्गी इज ऑल्सो प्लांट बट देयर सेल वॉल constituent is different. In algae, the cell wall consists of cellulose plus galactans plus mannans plus calcium carbonate mineral. In case of other plant cell, it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. In case of fungi, it is made up of a complex carbohydrate which is called chitin. Clear? It is rich in nitrogen. और प्रोटिस्ट का भी सेल्यूलोज प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एंड देन इट कैन शो सम मॉडिफिकेशंस. नाउ प्लांट सेल में the cell wall, it consists of outermost layer which is the primary cell wall. ये जो सेल वॉल है इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी ये फ्लेक्सिबल है, इट कैन मूव. It secretes a cell wall inside which is inside to it, which is the secondary cell wall. Clear? तो एक, let us consider two plant cells. Oops, me and my drawing, award-winning drawing. ये अगर दो प्राइम सेल्स है, प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल. दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है. बीच में देयर इज अ सीमेंटिंग थिंग विच इज कॉल्ड मिडल लैमेला. दिस मिडल लैमेला इज रिच इन calcium pectate. It acts as a glue to hold the neighboring cells together and through them pass many plasmodesmatal connections. Clear? All about cell wall? मैं सेल वॉल के पॉइंट्स यहां आपके लिए आई एम होल्डिंग देम हियर so that you can take a screenshot. Clear? अब सेल वॉल के अंदर हम जाते हैं and let us have a look at what a cell membrane or a plasma membrane is.
Now students, what is the difference between when we say a cell membrane या plasma membrane? जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वी आर रेफरिंग टू द आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करके रखा है. And when we say cell membrane means the membrane, it can be a plasma membrane, yeah, it can also be the membranes of the different organelles of the cell. क्लियर है? स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही होता है, दोनों में ही फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर्स पाए जाते हैं अलोंग विथ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. डिफरेंसेस थोड़े होते हैं, बट प्राइमरीली या द मेजरली द स्ट्रक्चर इज सेम. Cell membrane can include plasma as well as the organelle membranes. Plasma membrane बोले तो खाली the limiting membrane. Okay? अब चलते हैं cell membrane पे. Now cell membrane actually consists of, मैं यहाँ पे लिख दूं, it consists of lipids plus proteins plus cholesterol plus carbohydrate. Out of this, lipid and protein are the major components. Okay? Plus कुछ cholesterol पाया जाता है and some carbohydrates also. ये लिपिड जो होता है, what are they? They are actually phospholipids. Now phospholipid of the membrane have a typical structure. एक तरफ उनका पोलर हेड होता है, दूसरे तरफ उनका पोलर नॉन पोलर टेल. दिस इज हाइड्रोफिलिक, यानी इन्हें पानी से प्यार है, एटलीस्ट पानी से डर नहीं लगता. हाइड्रोफिलिक हेड, दिस साइड इज द हाइड्रोफोबिक, इन्हें पानी से डर लगता है. हाइड्रोफोबिक टेल. ये फॉस्फोलिपिड्स जो है ये बाइलेयर में अरेंज्ड होते हैं. बाइलेयर मतलब क्या? दो लेयर्स. तो दो लेयर्स के अरेंजमेंट कुछ ऐसे होते हैं. हाइड्रोफोबिक टेल फेस ईच अदर एंड इनवर्ड्स. हाइड्रोफिलिक हेड दे फेस आउटवर्ड्स. और ये अरेंजमेंट इसीलिए रखा गया है सो दैट द सेल कैन स्टे इन वाटर या एक्वस एनवायरनमेंट if it has to. Okay? So that is all about the lipid part of cell membrane. इसके अलावा जो होता है that is proteins. Now to explain the structure of protein, let us see here. Proteins can be of two types. Here do you see this? This is integral protein. Integral protein वो है which traverses across the membrane, इस पार उस पार. और पेरिफेरल प्रोटीन वो है जो ऊपर ही ऊपर लगा हुआ होता है. With some light scrubbing light treatment, peripheral proteins can be knocked off the surface of the lipid layer. Integral proteins cannot be done so. Clear? And if I enlarge this, ये देख लीजिए, these are the polar heads and these are the non-polar tail अंदर की ओर. क्लियर है? Now besides this, okay, besides this there are cholesterol also present in the cell membrane, and in addition to the there are some, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन या कुछ लिखा, पेरिफेरल प्रोटीन्स या शुगर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. सो देयर आर 4 एलिमेंट्स. क्लियर? अब प्रोटीन और लिपिड का स्ट्रक्चर वेरी करता है. इन ह्यूमन RBC it is 52% protein and 40% lipid. The same may change for nerve cell. वहां पे लिपिड का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा और प्रोटीन का कम, एंड सो ऑन. ओके? नाउ in 1972
Singer and Nicholson had proposed the fluid mosaic model to explain the structure of plasma membrane. According to this structure, ये lipid layer जो है, they called this the quasi-fluid layer. Quasi-fluid मतलब क्या? You know, if you take a crystal of jelly और उसको टेबल पे रख दे, वो लिक्विड जैसा फ्लो नहीं कर जाएगा और वो बिल्कुल हार्ड बन के भी, रिजिड होके भी एक जगह पे नहीं रहेगा. अगर आप उसको थोड़ा सा नॉक करते तो इट विल शो सम वाइब्रेटरी मूव, राइट? दैट इज क्वासी फ्लूइड, अ थिक जेल लाइक थिंग जिसपे थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है. That is what the nature of this lipid layer is, and it is quasi-fluid in nature, and this quasi-fluid nature of lipid allows lateral movement of these proteins. और ये lateral movement of जो protein होता है, that is referred to as the fluidity of the membrane. Yeah, fluidity matter, okay. Lateral movement is membrane fluidity. Now, membrane fluidity, why is it important? This helps in cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, and cell division. Okay? अब membrane वो structure है, cell membranes are always semi-permeable and transports occur through these layers. ट्रांसपोर्टेशन जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पैसिव, एक्टिव. पैसिव वो ट्रांसपोर्टेशन होता है विच डज नॉट यूज एनी एनर्जी. ट्रांसपोर्टेशन occurs along concentration gradient from a region of high to region of low. Okay. Now, अगर neutral solutes हैं, they transverse across the membrane just by the process of simple diffusion. Okay. वहीं पे अगर हम पानी की बात करें, water. Now, water also passes through a process called osmosis. ये osmosis है क्या? It is diffusion. और जब हम diffusion बोलते हैं, we mean a transfer from a region of high concentration to a region of low concentration. But diffusion across a membrane. डिफ्यूशन के लिए नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू हैव अ मेम्ब्रेन. आप एक कमरे में अगरबत्ती जला के रखते, वहां से जो धुआं इज ट्रेवलिंग इन द एयर, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूशन. बट ऑस्मोसिस अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रहा है, मेम्ब्रेन आ गया है, सो दैट इज डिफ्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. नाउ ये ऑस्मोसिस पैसिवली होता है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती. बट ट्विस्ट कहाँ है? We have the bilayer. अब पानी यहां से कैसे जाए? ये एरिया तो हाइड्रोफोबिक है. That is why they pass through some proteins, protein channels, and the proteins which are present in the cell membrane through which water passes, they are called porins या aquaporins. Clear? तो पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसे होता है? थ्रू ऑस्मोसिस एंड बाय ऑस्मोसिस एंड थ्रू दीज प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स. अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे. एक्टिव यूजेस एनर्जी. एनर्जी बोले तो एटीपी. वाई? बिकॉज यहां पे ट्रांसफर अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन gradient.
Such an example is the sodium and potassium pump. Now sodium potassium pump जो होता है ये भी across the cell membrane एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है. ओके, and then it allows the passage of sodium and potassium across the hole या the channel that they form. Here, passive transport, no energy needed, simple diffusion moves neutral solutes from high to low. Water moves this way by osmosis. Now, because polar molecules can't cross the lipid non-polar bilayer, that is why they need carrier protein. और पानी के लिए जो कैरियर प्रोटीन है उसका नाम है एक्वापोरिन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एटीपी और ये लो से हाई कंसंट्रेशन ट्रांसफर कराता है. क्लियर? So with this we are done with cell membrane. अब हम सेल ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे. Now for eukaryotes we can divide some of the organelles into two categories. The endomembrane system, यहां पे वो organelles आते हैं whose functions are coordinated. And what are the organelles? Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuole. And दूसरा है non endomembrane system. यहां पे जो जो आता है that is mitochondria, plastids and peroxisomes. क्लियर? तो पहले हम यहां से शुरू करते हैं. Now what is an endoplasmic reticulum? Do you see this? Endoplasmic reticulum is a network of ये lamella like structures जिसे क्रिस्टा भी कहा जाता है. At many places it is attached with the nuclear membrane. और ये endoplasmic reticulum के जो lamella है it divides the entire space into luminal and extraluminal space. At some places they are associated with ribosomes. ये जो dot दिख रहा है these are right here, they are the ribosomes. And some places they are not associated with ribosomes. The endoplasmic reticulum associated with ribosomes are called rough endoplasmic reticulum, and the one that are not associated are called smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is associated with protein synthesis, or smooth endoplasmic reticulum is associated with the synthesis of lipids and steroidal hormone in case of animal cells. Clear? Next is Golgi apparatus. तो Golgi apparatus क्या है? Now okay, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ लिख दें endoplasmic reticulum are the manufacturers. फंक्शन इनका कैसे कैसे कोऑर्डिनेटेड है. मैन्युफैक्चरर्स. Golgi complex are the packers. Okay, तो Golgi complex it was discovered by Camillo Golgi. और ये जो organelle है it consists of flat disc like structures. इनका एक सरफेस कॉन्वेक्स होता है which is called the cis, दूसरा साइड कॉन्केव होता है right here.
इट इज कॉल्ड द ट्रांस या फॉर्मिंग फेज। क्लियर? और ये डिस्क जो होते हैं इन्हें सिस्टर्नी बोला जाता है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड दे आर इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो बनता है वो सिस साइड से घुसता है, पैकेज्ड होके इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्रांस साइड से निकल जाता है। क्लियर? सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर पैकेज्ड? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इन एडिशन प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन भी यहां बनता है। So they are the site of formation of glycoprotein. The same occurs with lipids. So we see the formation of glycolipids here in Golgi bodies. So they इनके functions क्या क्या हो गए? They are the major site of formation of glycoprotein and glycolipid and also packaging of protein and lipid vesicles. Clear? Now गोल्गी apparatus जो है वो खाली यही दो चीज नहीं बनाते। देयर फंक्शन इज ऑल्सो दैट दे मेक दिस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड लाइसोसोम। और लाइसोसोम ही हमारा अगला ऑर्गेनेली है ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये वेसिकल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इनके अंदर हर तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सच एज लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। They are active in acidic pH and they help in digestion of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. या in one word कहे तो the macromolecules of the cell. Clear? And now the last part organelle of the endomembrane system, that is vacuole. ये vacuole membrane bound structures है जो साइटोप्लाज्म में होता है। They either hold water या sap या excretory product. और इनका जो membrane होता है they have a name called tonoplast. Now in case of plants, the vacuoles may occupy up to 90% of the cell volume. और ये membrane जो है ये हमेशा active transport करते हैं। Why? Because यहाँ पे जो gradient ingredients अंदर होते हैं उनका concentration बाहर ज्यादा कम, अंदर ज्यादा होता है। ओके? इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और कुछ कुछ प्रोटिस्ट्स में फूड वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। सो विद दिस वी आर डन विद द four organelles that fall under endomembrane system. अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस, ये इनर मेम्ब्रेन है और बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इनर मेम्ब्रेन जो है दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, इट एनक्लोजेस द मैट्रिक्स ऑफ द mitochondria and it forms this invagination या infolding called crista inside the matrix. Clear? इन क्रिस्टा में सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड एटीपी सिंथेसिस के लिए जो मॉलिक्यूल्स चाहिए वो इन क्रिस्टा में लोकेटेड होता है। मैट्रिक्स में जो होता है, मैट्रिक्स कंटेन्स राइबोसोम, one DNA which is circular and single and some RNA. इन सब को मिला के प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड एटीपी सिंथेसिस एज अ पार्ट ऑफ aerobic respiration. Because of the presence of DNA, mitochondria is a semi-autonomous organelle. क्लियर? तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या आ जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन,
production of ATP, protein synthesis. Clear? Now mitochondria जो है it divides by fission, और पर सेल इसका नंबर डिसाइड करता है कि सेल का रिक्वायरमेंट क्या है. इफ द सेल रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इन दोज सेल्स यू विल फाइंड हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब इसका डायमेंशन, सो इट इज सॉसेज शेप्ड या सिलिंड्रिकल. डायमीटर इसका 0.2 to 1 नैनोमीटर होता है एंड लेंथ इज 1 to 4.1 माइक्रोमीटर. सॉरी, मैंने 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होगा, मैंने शायद नैनोमीटर बोला है. आई एम सॉरी. नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट सेल्स में एंड कुछ कुछ प्रोटिस्ट्स में. नाउ प्लास्टिड्स का शेप क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड. इफ यू सी हियर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है and the matrix that it encloses is called stroma. Clear? अब स्ट्रोमा के अंदर ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है. दिस इज अ कॉइन. सिंगल कॉइन इज कॉल्ड थाइलाकॉइड. और ये थाइलाकॉइड एक नहीं होता, ये स्टैक पे होता है. Many are stacked together, such as you can see here. Or such a stack of thylakoid is called grana या granum. Now ये granum जो है ये आपस में interconnected होते हैं with the help of this lamella like structure which is called stroma lamella. अब thylakoid जो होता है ये single coin, that is also double membrane bound structure. क्लियर? और इन मेम्ब्रेन्स में ही सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 एंड एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए जो मशीनरी चाहिए वो यहीं पे लोकेटेड होता है. एंड द स्पेस दैट इट एनक्लोजेस इज कॉल्ड द ल्यूमेन. क्लियर? द स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकॉइड you will read again and in details in the chapter photosynthesis. अब plastids, depending on their content, they can be classified into chloroplast, which contains chlorophyll and carotenoids, chromoplast, which contains carotenoids, yellow, orange या red color, या xanthophylls भी हो सकता है. यहाँ पे please write xanthophylls. ओके. और रीनीट पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ज़ैंथोफिल वाले पिगमेंट को आप क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट. देन ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है. दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे स्टोर दे कैन बी कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट. अमाइलो इज इंडिकेटिव कि वहां कार्बोहाइड्रेट होगा. तो यहाँ पे स्टार्च का एग्जाम्पल दिया हुआ है. वेयर कैन वी सी एमाइलोप्लास्ट? इन पोटैटो. इलायोप्लास्ट विच स्टोर्स ऑयल्स या फैट्स एंड एल्यूरोप्लास्ट विच स्टोर्स प्रोटीन्स. क्लियर? नाउ ये क्लोरोप्लास्ट का शेप इट कैन ऑल्सो वेरी. इट कैन बी लेंस, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या रिबन शेप्ड. And their number also varies. It can be 1 per cell, such as in Chlamydomonas, या 20 to 40 in each cell of the mesophyll of green leaves. Clear? अब ये स्ट्रोमा जो है of the plastid, it contains small circular DNA, 70S ribosome, and that is why they are also called semi-autonomous organelle because of the presence of DNA. Okay? And remember in mitochondria में भी यहाँ पे जो राइबोसोम है that is 70S.
राइट हियर। ATS खाली यूकेरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलता है, ऑर्गेनेली के अंदर हमेशा 70S होता है। प्लीज मार्क दिस डिफरेंस। अब आते हैं राइबोसोम में। राइबोसोम was first observed by George Palade. Now ribosome is composed of RNA. Which type of RNA? rRNA, ribosomal RNA, plus proteins, many different type of proteins, about 70 type of proteins, but कोई membrane इसे surround नहीं करता, and that is why it is a membraneless organelle. नाउ यूकेरियोट का जो राइबोसोम होता है, यूकेरियोट साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, टू बी मोर स्पेसिफिक, यूकेरियोट साइटोप्लाज्मिक, प्लीज राइट। ओके, it consists of two units. The larger unit is 60S and the smaller unit is 40S. और वहीं पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम is 70S, larger unit 30S and smaller unit, larger unit 50S, smaller unit 30S. ये S क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और इस S से पता चलता है कि उस यूनिट का डेंसिटी एंड साइज क्या है। लार्जर द नंबर ऑफ S, लार्जर एंड मोर डेंस द यूनिट विल बी। अब राइबोसोम को अगर हम देखें, ये लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। न प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, ये यूनिट्स हमेशा अलग अलग रहते हैं। दे स्टे सेपरेट, दे डोंट जॉइन। द ओनली टाइम दे जॉइन इज एट टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? एट टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वो mRNA के ऊपर आके दो यूनिट्स जुड़ जाते हैं, एंड अगेन व्हेन द सिंथेसिस इज ओवर, फिर से ये यूनिट्स अलग हो जाते हैं। इस वाले मैकेनिज्म के बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फीचर इज साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन है क्या? Now when we say कि एक सेल का शेप पॉलीगोनल है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, ओके, कुछ तो होता होगा इस सेल के अंदर which helps in maintaining the shape of the cell। अगर कुछ भी नहीं है, खाली अंदर अगर एक जेली लाइक साइटोप्लाज्म हो, तो थोड़े से प्रेशर में ये स्फेरिकल से ये चपटा हो जाएगा, राइट? पर ऐसा होता नहीं है। सो व्हाट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दिस शेप? दैट इज साइटोस्केलेटन। तो क्या है ये साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू दिस वेरी फाइन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर made up of proteins, and these filaments can either be in the shape and size of microtubules or microfilaments या intermediate filaments present in the cytoplasm. Function, mechanical support, motility and maintaining the cell's shape. Clear? Now let us come to two structures which help in motility of the cell if the cell is motile. एक तो है cilia, दूसरा है flagella. सिलिया और फ्लैजेला में फर्क क्या है? एक तो है नंबर, फ्लैजेला कैन बी फ्यूअर इन नंबर, सिलिया मल्टीपल। सिलिया छोटे छोटे होते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑल अलोंग द बॉडी। फ्लैजेला जहां पे भी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, दे आर लॉन्ग ट्यूबुलर। व्हाट इज देयर फंक्शन? दे हेल्प इन लोकोमोशन। हाउ? सिलिया जो होता है इट मूव्स ओर लाइक, जैसे नाव का जो ओर होता है ना, दैट इज हाउ इट मूव्स इन द फ्लूइड मीडियम। और फ्लैजेला जो है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, बट इट्स मूवमेंट इज सम व्हाट ईदर विप्लैश लाइक ये है, यू चाबुक जैसा फ्लूइड में इट बिट्स, या स्पिनिंग टाइप। क्लियर?
या यूं फ्लैजेला स्पिन कर करके मूव करेगा। क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फ्लैजेला को देखें, द फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ अ बेसल बॉडी। हु मेक्स द बेसल बॉडी? सेंट्रियोल। और फिर जो है ये ऊपर का शैफ्ट है, ये शैफ्ट ही वो है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं इन केस ऑफ फ्लैजेला। फिलामेंट भी कहा जाता है। लेट्स से दिस इज द शैफ्ट। अब ये शैफ्ट इज मेड अप ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन और अंदर 9 ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन एंड दैट इज कॉल्ड द कोर। कोर को एक्सोनीम भी बोला जाता है। ओके, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लैजेला। अब हम इसका एक ट्रांसफर सेक्शन देख लें। नाउ हियर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द फ्लैजेला, ये जो है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे हमने अभी दिखाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने दिखाया था ये प्रोटीन के ट्यूब्यूल्स लॉन्गिट्यूडिनली एंड पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। In the cross section you can see them here arranged radially, यानी along the radius and towards the periphery. Okay, peripheral microtubule doublets. एक एक में दो दो रिंग होते हैं and there are 9 such doublets. Clear? ये 9 doublets जो है they are interconnected with this interdoublet bridge. Can you see the green color? Okay. ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए एंड दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन ट्यूबुलिन। फिर अंदर 2 डबलेट्स होते हैं विच आर इंटरकनेक्टेड बाय अ ब्रिज और इनको सराउंड किए रहता है एक सेंट्रल शीथ। ये सेंट्रल शीथ के साथ ये जो डबलेट्स है दे मेक कनेक्शंस बाय दीज रेडियल स्पोक। यानी एक साइकिल का जो व्हील होता है ना, अब जैसे देखते हैं उसके जो स्पोक्स होते हैं वो सेंटर के साथ कनेक्शन बनाए रखता है। यहां पे भी यू कैन सी द सेम थिंग। क्लियर? सो दिस इज व्हाट अ फ्लैजेला लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। क्लियर? नाउ अगर हम 9 + 2 डबलेट करते हैं, in total if we ask how many numbers of microtubule filaments are there, total कितना होगा? 9 × 2 क्या है? 18 + 2 20. Clear? 20 microtubule filaments, not doublet. Please remember, ये डेटा जानना जरूरी है बिकॉज शायद वर्ड्स को हेर फेर करके एमसीक्यू पूछ लिया जाए ना, आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। नाउ व्हाट इज सेंट्रोसोम एंड व्हाट इज सेंट्रियोल? Now, what we have, this is a centrosome. Okay, ये centrosome है क्या? It consists of centrioles. और ये centrioles है क्या? It consists of 9 filaments of proteins. और ऐसे 2 बंडल होते हैं and they are at right angle to each other. These are centriole. अब centriole के पास there is an amorphous layer, dense amorphous layer which is said to be the centrosphere
और इन दोनों को मिला के जो होता है दैट इज सेंट्रोसोम। क्लियर? नाउ लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल में भी क्या क्या देखने को मिलता है हमें? हियर वी गेट टू सी 1 2 3 triplets of what? Microtubules made up of tubulin protein. Clear? There are 9 such triplets. और बीच में जो है that is not a microtubule anymore, that is a proteinaceous hub. And it is referred to as hub. Now ये जो ट्रिपलेट का innermost filament होता है, they are connected to the proteinaceous hub. Clear? And outermost filament of one triplet is interconnected to the innermost tube filament of the second triplet, next triplet. Clear hai? And this is how it gives the centriole a cartwheel like structure in a cross section. यानी ये जो हमें यहाँ 9 ट्यूब्यूल्स दिख रहा है, दे आर एक्चुअली 3 इन नंबर, और यू दे आर कनेक्टेड। बीच में एक प्रोटीनेशियस हब है विच इज कॉल्ड द सेंट्रल हब। अब इन सेंट्रियोल के पास डू यू सी दिस डेंस स्ट्रक्चर? दीज आर पेरीवेंट्रियोलर सैटेलाइट्स। ये पेरीवेंट्रियोलर सैटेलाइट्स क्या होता है? ये कुछ नहीं, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्लाक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच सराउंड्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्रोटोप्लाज्मिक प्लाक मतलब क्या? जैसे हम जब कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलते हैं ना, हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से फेंटो नहीं तो वो लंप्स फॉर्म हो जाएंगे। सो दीज आर मेम्ब्रेनलेस लंप लाइक प्लाक लाइक structures formed by the protoplast itself. Clear? तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट वी सी हियर। इसके चारों तरफ ये प्रोटोप्लास्मिक प्लाक या पेरीवेंट्रियोलर सैटेलाइट्स है, एंड दिस इज अ डेंस एमोर्फस एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, नो मेम्ब्रेन, और इसको सेंट्रोस्फेयर कहा जाता है, एंड द बोथ मेक द सेंट्रोसोम। क्लियर? सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल fibers at the time of cell division. They help in forming the basal body of cilia and flagella. Clear? Now the most important and distinguishing feature of eukaryote, nucleus. Discovered by who? Robert Brown. Now here, what is nucleus? Double membrane bound structure. तो ये double membrane bound structure है. This is the outer membrane. This is the inner membrane. दोनों के बीच में intermembranous space है. Clear? This forms the nuclear membrane. Yani nuclear membrane is what? Double membrane structure which consists of outer and inner membrane, and it encloses a perinuclear space या intermembrane space in between the two membranes. क्या ये nuclear membrane continuous है? The answer is no. And you can see here. At places, these nuclear membrane, they come and fuse sideways and they give rise to nuclear pores. ठीक है? Nuclear membrane is associated with ribosome, as well as in many places you would see them associated with endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum यहाँ से अब शुरू हो जाता है. Clear? Now let us come inside the
न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस ये जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज ऑल्सो अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसके अंदर we get to see many, one, two or more than one dense न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। यहां पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बस न्यूक्लियोप्लाज्म इटसेल्फ बिकम्स डेंसर एंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। दे आर द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ribosomal RNA, not just RNA, ribosomal RNA. Clear? And depending on the state of the cell, nucleus के अंदर या तो एक न्यूक्लियोलस हो सकता है या more than one. If the requirement to synthesize rRNA is very high, you may find more than one nucleolus. Clear? Up. Do you see this beaded thread-like structure? That is the genetic material of eukaryotic cell, या you can see इसे DNA. And they are present in thread-like structure which are called chromatin. Okay? अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? Synthesis of RNA, whether it is mRNA, rRNA और tRNA. अब यहां पे अगर सिंथेसिस होता है, they need to come out of the nucleus as well as many other proteins and other molecules need to come in and out of the nucleus, and thus this nuclear pores. Clear? Now, in eukaryotic cell, usually it is one nucleus per cell. But some cells may have more than one nucleus. Say for example the muscle cell of human. It shows multi-nucleate cell. Clear? Yeah, there can be no nucleus in a cell. Such cells are called enucleate cell. In case of human RBC, it is enucleate. In case of plant, you can say the sieve tube cells. ठीक है? So with this, we are done with the nucleus also. अब आगे बाकी रह जाता है क्या? The chromatin या the chromosomes. वो भी देख लेते हैं. Now ये chromosomes है क्या? They are condensed, nothing but condensed chromatin. When do we get to see them? Only at the time of cell division. So when the cell is in the interphase, when the cell is not dividing, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड एंड फैले हुए होते हैं. एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन व्हाट हैपेंस? कंपैक्शन बिगिंस. यानी ये एक क्रोमैटिन फाइबर जो है ये अब कंपैक्ट होने लगता है एंड इट गिव्स राइज टू अ कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर लाइक दिस. ऐसे ही कॉम्पैक्टेड क्रोमोसोम क्रोमैटिड को क्या कहा जाता, सॉरी, ऐसे ही कॉम्पैक्टेड क्रोमैटिन को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड. तो व्हाट डू वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस? वी हैव वन क्रोमैटिन जो रेप्लिकेट अभी तक किया नहीं है. इट हैज जस्ट कंडेंस्ड टू फॉर्म वन क्रोमैटिड. अब इस क्रोमैटिन को अगर आप देखें, दो तरफ विंग लाइक स्ट्रक्चर है, बीच में देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन. दिस कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर. क्लियर?
और सेंट्रोमेयर के दो तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच इज कॉल्ड काइनेटोकोर। बट यहां पे आपको दो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। सो व्हाट इज इट ना, होता क्या है कि एक क्रोमैटिन जब ऐसा फैला हुआ होता है वो रेप्लिकेट भी कर लेता है, राइट। सो इफ वन chromatin is compactin, it forms one chromatid with a constriction, but because वो replicate कर चुका होता है तो दूसरा chromatid को भी वो बना लेता है। Thus we have one chromosome. Please pay attention। और स्टूडेंट्स इसी पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन हो रहता है। Thus the first time we can see a chromosome in its compacted form, उससे पहले replication हो चुका होता है। So the first time we can see a chromosome, we see one chromosome with two chromatids, और ये दो क्रोमैटिड सेंट्रोमेयर पे ही चिपके हुए होते हैं और इसके दोनों तरफ काइनेटोकोर होता है। Now, at time of cell division, you will see कि हम पढ़ते हैं कि DNA content doubles, but the chromosome number does not double. Why? Because ये जो replicated chromosome होता है वो अपने parent chromosome से लगा हुआ होता है, इसीलिए इनकी गिनती अलग नहीं होती। It is only at the time of cell division कि ये दो क्रोमैटिड को बीच में से डिवाइड कर दिया जाता है एंड देन दे आर अगेन काउंटेड एज डिफरेंट क्रोमोसोम्स। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन वन क्रोमैटिड, टू क्रोमैटिड एंड वन क्रोमोसोम। तो ये क्या है, दिस इज वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड बिफोर रेप्लिकेशन। बट हमें ये स्टेज खाली टीलोफेज एनाफेज में जाके देखने को मिलता है। व्हेन ये वाला वन क्रोमोसोम वन क्रोमैटिड ये हमें एनाफेज में देखने को मिलता है जब ये बीच में से बिल्कुल फाड़ दिया गया है इससे। फर्स्ट टाइम वी सी अ क्रोमोसोम, वी सी अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, दस वन क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड्स। क्लियर? अब chromosomes can be classified into four types depending on the presence of centromere कि ये constriction कहाँ पे है। Now the chromosome can be metacentric। metacentric मतलब क्या? ये centromere is exactly at the center और ये आर्म्स जो है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। देन वी हैव द सेकेंड टाइप कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है, एक थोड़ा सा छोटा। वाई? बिकॉज ये सेंट्रोमेयर जो है इट इज लिटिल अवे फ्रॉम center। Clear? Then we have acrocentric। acrocentric में it is almost towards the end। As a result, one arm is short, other is long। Then at last we have telocentric। telocentric में ये जो सेंट्रोमियर या कंस्ट्रिक्शन है ये बिल्कुल एंड पे होता है। क्लियर? एज अ रिजल्ट हमें ये दो आर्म्स एक ही फ्रेगमेंट जैसा नजर आता है। Now, in some chromosomes एक secondary constriction भी होता है। So we have been seeing one constriction so far।
which is called the centromere. इसके अलावा कहीं कहीं towards the end एक और constriction होता है. This part, do you see this? This is the secondary constriction. और ये जो है इसको सैटेलाइट ऑफ द क्रोमोसोम कहा जाता है. ये नॉन स्टेनिंग पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम होता है, यानी इट डज नॉट स्टेन. क्लियर? ऑल क्लियर अबाउट क्रोमोसोम्स? इफ सो, प्लीज गिव द वीडियो अ लाइक. And now we are almost done with eukaryotic cells के organelles. Last एक छोटा सा topic बच जाता है, which is microbodies. What are the microbodies? Membrane bound minute vesicles containing various enzymes, and they are found both in plants and animals. Clear? Now students, with that आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है. आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? Please let me know in the comment section. And if you have liked the video, don't forget to give it a like and don't forget to subscribe to my channel and share it with your friends. Bye.